Hello everyone, myself A.K. Pandey. Today we are going to discuss exercise 1.1 question number 3. Okay, question number 1 and 2 already we have discussed. You can check in the description, I have provided the link there. Okay, so see the question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay, so there are 616 members. Okay, there are 616 members and they have to march behind an army band of 32 members. So here you have to find the maximum number of columns in which they can march. Maximum, so see, since it has been said that maximum, maximum means highest. Okay, maximum means highest. So you have to find SCF in this case. Okay, when they will ask you for minimum, minimum. In that case, you have to find LCM. Okay, so here we will find SCF. So already you know the process how to find the SCF of any two number. We can apply Euclid division lemma. So here again 616 is greater than 32. Okay, 616 is greater than 32. So Step 1. Again we have to apply Euclid division lemma here. Okay. So step 1 is 616 means dividend. 616 is equal to division. Division is what? 32 into quotient. Quotient we have to find. Okay. For that we have to make the division. 616 divided by 32. Okay. So 32 into 1 is what? 32. How much? Again 32 into 9 is what? 288. Okay, on subtracting we will get the remainder as 8. Okay, so your question will be what? 19 plus remainder is what? 8. So since the remainder is not equal to 0, again we have to proceed for our second step. Okay, step 2. Now 32 and 8 we have to relate them. ठीक है ना? 32 and 8 को रिलेट करेंगे तो 32 क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड. 32 is equal to 8. 8 will be your divisor. Okay, 32 is equal to 8 into quotient. So डिवाइड कर लेना है हमको. 32 okay 8 कितना होगा? 8 4 जा 32. Okay, so remainder is what? Remainder is 0. Okay, so 8 into 4 plus 0. ठीक है, तो at this stage, at step 2, the remainder is what? 0. Remainder 0 मिल गया, तो हमको यहीं पे stop कर देना था. At this stage, ठीक है, डिविजन क्या था? 8. Therefore, SCF क्या हो जाएगा? SCF is equal to 8. ठीक है, तो क्या लिखना है हमको लास्ट में? लास्ट में लिखना है therefore maximum number of columns. Okay, क्या लिखना है? Therefore maximum number of columns is equal to 8. Okay, so अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, इसको लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए एक बार. यूज
Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. फॉर्म कैसा है हमारा 3m और क्या है 3m plus 1 ऐसा फॉर्म है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमको इसमें स्क्वायर का फॉर्म में दिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है। हमको कैसे लेना पड़ेगा स्क्वायर का फॉर्म। तो कोई जो भी फॉर्म लेंगे सबसे पहला काम क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने बोला है ना इस पे। सो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें r का रेंज को आपको पता ही था, पहले बताया है, r इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। सो अब इसमें हमको b का वैल्यू को डिफाइन कर लेना है। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, दैट इज r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। 3 तो ले सकते हैं क्योंकि 3 क्या है, लेस देन, r का जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन टेक r इक्वल टू 0 1 एंड 2, ठीक है। तो स्टेप 1, पहला स्टेप 1 में क्या करना है हमको, वही फिर a इज इक्वल टू क्या लेना है, पहले सबसे पहला काम है कि r इक्वल टू क्या था 0। व्हेन r इक्वल टू 0 a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या था b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, q प्लस r का वैल्यू क्या है 0, सो प्लस 0 इज व्हाट नथिंग, ठीक है। सो वी हैव टू मेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर अभी क्या करना है, इंप्लाइज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 3q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज व्हाट 9q स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 ओके इनटू 3q स्क्वायर, इज इट, ठीक है ना। एनी डाउट, एक बार देख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो फॉर्म है हमारा, ठीक है, इसको हम सपोज m ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा हियर, ठीक है, सपोज इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3m, ठीक है। अभी यहाँ पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्म आ गया है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको लेना है r इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टेप 2, ठीक है। क्या लेना है इसमें हमको, r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 में देखिए क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या था 3q प्लस 1, ठीक है। तो वही करना है हमको, बोथ साइड स्क्वायर करना है, बिकॉज़ इस स्क्वायर का फॉर्म में यहाँ पे मांगा है क्वेश्चन में। सो ये कैसा हो जाएगा a स्क्वायर एंड दिस, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर, दैट मींस व्हाट 3q स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 1, ओके, प्लस क्या था b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करने से कितना मिलेगा हमको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके। सो अब हमको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्या था ये a स्क्वायर ना, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। सो इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेंगे हम लोग, ये दो टर्म से वी कैन टेक 3 कॉमन, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये अगेन 2q प्लस 1, ठीक है। सो इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू
3m plus 1. ठीक है, we can write this as m, where m is equal to क्या लिखेंगे हम लोग 3q square plus 2q. ठीक है, इसको बिकॉज m क्या बोला था क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, देखिए एक बार for some integer m. ठीक है, so we have taken it as an integer. ठीक है, m is equal to 3q square plus 2q. ठीक है, so in place of this we can write m. तो ये कैसा फॉर्म बन गया, a square equal to 3m plus 1 हो गया. पहला फॉर्म हमारा आ चुका था, ये दूसरा वाला भी आ गया, डन. ठीक है, अब लास्ट जो है a r equal to 2 के लिए वो भी हम लोग करके देख सकते हैं. ठीक है, r is equal to 2. देखिए स्टेप 3 में क्या बोला है, when r is equal to 2, again the same process implies a is equal to क्या था b3q plus 2. ओके, क्या करना है, स्क्वायरिंग के लिए बोल रहा था, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर. ठीक है, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला अगेन, कितना हो जाएगा ये 9q square plus 2 into 3q into 2 plus 2 square. ओके, तो कितना मिल जाएगा हमको ऐसे, again implies a square is equal to 9q square plus ये कितना मिल जाएगा 12q plus 4. ओके, एनी डाउट, देखिए एक बार. ठीक है ना, अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, देखिए अगेन वी हैव टू टेक कॉमन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए इसका implies a square is equal to 9q square plus 12q plus ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 plus 1. इज इट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. implies a square is equal to, देखिए इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 3. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा अंदर में 3q square plus 4q plus 1 plus 1. okay, implies a square is equal to 3. in place of this we can take m plus 1. ठीक है, आ गया मेरा फॉर्म 3m plus 1 का. ठीक है, यहां पे लिख देना है where m is equal to 3q square plus 4q plus 1. okay, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1. ठीक है, हो गया, डन. if you have any doubt then feel free to comment. okay, so अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 5. So now let us proceed to our next question number 5. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखना है एक बार. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1, okay, or 9m plus 8. अब यहां पे सबसे मेन चीज क्या है, क्वेश्चन में बोला है क्यूब. ठीक है, क्या बोल रहा है, क्यूब. ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो इसमें देखिए सबसे मेन चीज सॉल्यूशन. तो सबसे पहला काम देखिए तो क्या करना है हम लोग को, लेट a, ओके, लेट a be any positive integer. okay, let a
be any positive integer. ओके, ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है ना, तो फॉर्म कैसा था हमारा यूक्लिड का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था। तो a तो हमको पता ही है पहले से कि क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब b को हमको डिफाइन करना है, तो b का वैल्यू क्या होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि b का वैल्यू को 9 लिख दे रहा है, नहीं। Why? In this case we have take b equal to 3. क्यों लेना है 3? क्योंकि क्यूबिक है, 3 का क्यूब कितना होगा 27. So from that we can take 9 कॉमन, जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग किए थे, ठीक है। उसमें क्या किए थे, हम लोग 3 कॉमन ले रहे थे, ठीक है। उसमें फॉर्म कैसा था हमारा, 3 का फॉर्म था, ठीक है। b is equal to 3 लिए है, बिकॉज़ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 से हम लोग कम से कम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस to make this form you have to take b is equal to 3, ठीक है, because 3 का क्यूब 27, तो वहां से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। सो स्टेप 1 वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला ये तो b का वैल्यू हो गया 3, अगेन r का वैल्यू क्या, r is greater than equal to 0 but less than क्या होगा 3, that is r का वैल्यू क्या हो गया, r is equal to 0 1 and 2, ओके। सो स्टेप 1 में क्या करना है, वही a is equal to b के जगह पे क्या होगा यहाँ पे 3, ठीक है। a is equal to b क्यू प्लस r था हमारे पास, सो a is equal to क्या होगा 3 क्यू प्लस r का वैल्यू क्या है 0, सो ये क्या होगा a is equal to 3 क्यू, implies क्यूबिंग बोथ साइड a क्यूब, क्योंकि हमको क्यूब का फॉर्म में चाहिए, क्यूबिक में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। Because it can be expressed in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So क्यूब करना है, a क्यूब is equal to क्या होगा ये 3 क्यूब होल क्यूब, कितना मिलेगा हमको, a क्यूब is equal to 27 क्यूब क्यूब, implies a क्यूब is equal to, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 into 3 क्यूब क्यूब, ओके। 9 3 जा 27। अब समझ में आया why we have taken b is equal to 3, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म बन गया, again we can write where, ठीक है, m is equal to क्या ले लेंगे हम लोग 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। मतलब in place of this we can write m, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा देखिए एक बार, implies a क्यूब is equal to कैसा हो जाएगा 9m, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्म आ चुका है, ठीक है। a cube is equal to 9m, फर्स्ट फॉर्म we have obtained. Now step 2, तो क्या होगा स्टेप 2, r is equal to किसके लिए 1 के लिए, ठीक है। r is equal to 1 we have to take, तो देखिए कैसा होगा ये, सो स्टेप 2 देखना है क्या करना है, अगेन a is equal to b क्यू प्लस r हमारा फॉर्म है, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a पहले सबसे पहला काम r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू यहाँ पे होगा 1, ठीक है। r इक्वल टू 0 कर लिया हम लोग, r इक्वल टू 1, तो a is equal to क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। और क्या था q 3 q प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड implies क्या हो जाएगा ये a क्यूब is equal to a plus b होल क्यूब, ठीक है। सो क्या होगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 into, ठीक है, क्या है a स्क्वायर b प्लस, ठीक है, 3 into ab स्क्वायर, ओके। तो देखिए कैसा हो जाएगा, implies a क्यूब is equal to कितना हो जाएगा ये 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 क्यू, ठीक है। और इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हाँ ऑलरेडी आइडिया तो हो गया है अभी इसका, ठीक है।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा इंप्लाइज कैसा होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या था ये 27 क्यू क्यूब, ठीक है। हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये प्लस 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ओके, प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, a क्यूब इज इक्वल टू कॉमन लेना है, सो एट द मैक्स वी कैन टेक 9 कॉमन, ठीक है। कितना होगा 3 क्यूब क्यूब, ठीक है, प्लस यहां कितना होगा 27 था, 9 निकाल कितना होगा 3 क्यूब स्क्वायर, प्लस यहां कितना होगा क्यूब प्लस 1, ओके, इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। क्या होगा ये वेयर, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ओके। सो सेकंड वन वी हैव ऑब्टेन, ठीक है, सेकंड वन मिल गया 9m प्लस 1, ठीक है। नाउ थर्ड वन 9m प्लस 8, तो स्टेप 3, ठीक है, इसको लिख लीजिए सब लोग। अब हम लोग स्टेप 3 में जाते हैं, स्टेप 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको ठीक से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप 3, ठीक है। तो क्या करना है इसमें हमको 9m प्लस 8 का फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अगेन वही हमारा फॉर्म क्या था हमारे पास a इज इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या था, हम क्या लिए थे b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या था 3, ठीक है, q प्लस अब हम लोग क्या लेना है r इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगेन क्या करना है क्यूबिंग, तो a क्यूब, ठीक है, क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब, अगेन द सेम प्रोसेस, कैसा हो जाएगा ये 3q क्यूब a क्यूब प्लस ये क्या था 2 मतलब b क्यूब प्लस 3 इनटू क्या था a स्क्वायर 3q स्क्वायर, ओके, इनटू क्या था b प्लस अगेन 3 इनटू क्या था ये b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इनटू 3q, ओके, implies a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 27q क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 27 54, ओके, 54q स्क्वायर, ओके, प्लस कितना हो जाएगा 4 36q, ओके, implies a क्यूब। अब हम क्या करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, ठीक है। तो 27q क्यूब, ठीक है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग 27q क्यूब देन क्या आएगा प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक है, इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से, ठीक है ना, एट द मैक्स वी कैन टेक 9 कॉमन, ठीक है, 9 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस, ठीक है, 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ओके। implies a cube is equal to 9m plus 8, कैसा हो गया ये where m is equal to, m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे m is equal to we have taken this, ठीक है, क्या था ये 3q क्यूब प्लस 6q
क्यू स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, ये हो गया m। तो वी हैव एक्सप्रेस 9m प्लस 8, ठीक है, अप टू दिस हो गया, ठीक है, थैंक यू।